دوسرا پوائنٹ جو یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ کافروں کے اوپر، کیونکہ وہ یسوع المسیح کے حواری پجاری ہیں، تو جو یسوع المسیح کے حواری پجاری ہیں وہ کافروں کے اوپر قیامت تک حاوی رہیں گے، اوپر رہیں گے، ان کا دبدبا ہوگا کافروں کے اوپر۔ جا کے پڑھو تیسری سورت عمران 55 آیت۔ سیمی سیمسن چوڑے کا دماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے یا ہم جس پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے سورہ 3 میں، سورہ ال عمران میں اور آیت 55 میں، 55 میں، کہ یاد کرو جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنے طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو یعنی کہ فالورز کو، تیرے ماننے والوں کو کیا کروں گا؟ قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ تو ہم اسی آیت پر ہم بات کریں گے۔ تو کیا اس آیت سے مراد مسیحی، کرسچن، چوڑے، عیسائی ہیں؟ تو قرآن پاک کی یعنی کہ اصل متن جو عربی ہے، کہیں بھی مسیحی، کرسچن، چوڑے یا عیسائی لفظ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے حواریوں کو یا فالورز کو، پیروکاروں کو، ان پر ایمان رکھنے والوں کو، ان کی امت کو کیا کہا گیا ہے؟ نصارہ کہا گیا ہے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آمین۔ کافر کون ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے اور محمد کو نہ مانے، وہ کافر ہیں سارے۔ یوں مسیحی بھی کافر، یہودی بھی کافر، ہندو بھی کافر، سکھ بھی کافر، آریہ سماج بھی کافر، بدھا کو ماننے والے وہ بھی کافر، کنفیوشس ہیں وہ بھی کافر، جتنے باقی سارے کافر ہی کافر ہیں۔ جی یوحنا 8واں باب اس کی 44ویں آیت پڑھ دیں۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ہاں، جو ایماندار نہیں، جو جھوٹے ہیں، جو قاتل ہیں، کیا ہے وہ؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے اپنے ہو۔ باپ کی خواہشوں کو یعنی ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ وہ شروع ہی سے کیا ہے؟ خونی ہے۔ کیا ہے؟ خونی ہے۔ کیا ہے؟ خونی ہے۔ خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ سچائی ہے ہی نہیں۔ یہ خدا کے کلام نے کلیریفیکیشن کر دی ہے۔ دیکھیے دوسرا کرنتھیوں اس کا 4واں باب اس کی 4تھی آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان، یہ ہے بائبل کا خدا۔ نصارہ کہا گیا ہے۔ تو کوئی عیسائی یعنی کہ جو عیسائی ہیں یا یہ چوڑے ہیں، کرسچن ہیں، یہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے پیروکار نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے وہ سیمی سیمسن کی ہی زبانی سنیے۔ قرآن کا عیسیٰ بائبل مقدس کا عیسیٰ نہیں ہے۔ مارک اٹ ڈاؤن، لکھ لیں، یہ گارنٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور خیال رہے کہ جیسے ہی آپ اسلامی عیسیٰ کو پیش کرتے ہیں، آپ کا جھوٹ ابھر کے نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے۔ جھوٹوں کا عیسیٰ بھی جھوٹا۔ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے بارے میں سیمی سیمسن یا مسیحوں کی کیا رائے ہے، اور اب یہ قرآن پاک میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم ہے، جن کے پیروکاروں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ قیامت تک جو ہے کفار پر غالب رہیں گے، تو وہ کون ہے؟ وہ اصل میں مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور یہ کب ہوں گے؟ جب حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کی جو آمد ثانی ہوگی، یعنی کہ اب تو وہ زندہ آسمان پر
उठाए गए, हजरत ईसा मसीह बिन मरियम जिंदा आसमान पर उठाए गए, उनको मौत नहीं आई, मसलूब नहीं हुए। ये जो मसलूब वाला वाकया है वो यसू का, वो एक लानती शख्सियत। यीशु मसीह का जो सारा जो नस्बनामा है, इसका मतलब ये है बैस्टर्ड जीसस, हरामजादा यीशु। गलतियों के नाम खत नए यादनामे में 3 बाब उसके 13वीं आयत पढ़ लेना। लानती यीशु, वो लानती बना वो अलग है। तो ये हजरत ईसा मसीह बिन मरियम मसलूब नहीं हुए, उनके मुंह पर जो नाउज़बिल्लाह थूका नहीं गया, उनको जलील नहीं किया गया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बाइज्जत काफरों से बरी किया और आसमान पर उठा लिया और उनको दोबारा भेजेंगे जमीन पर, दोबारा जमीन पर आएंगे। बहुत सारी हदीसें मुबारका में मैं यहां से पढ़ देता हूं कि आप इसका अगर आपके सामने स्कैन चल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं कि आसमान पर महल करामत और मुकर्रे मलाइका में बगैर मौत के हदीस शरीफ में है, सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत पर खलीफा होकर नाज़िल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, खनाजीर को कत्ल करेंगे, 40 साल रहेंगे, नकाह फरमाएंगे, औलाद होगी, फिर आपका वसाल होगा। वो उम्मत कैसे हलाक हो जिसके अव्वल में मैं हूं और आखिर ईसा और वस्त में मेरे अहले बैत से मेहदी। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मनारा शर्की दमिश्क पर नाज़िल होंगे। ये भी वारद हुआ कि हुजरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदफून होंगे। ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनके पैरोकार मुसलमान होंगे, जो कुफार पर क़यामत तक गालिब रहेंगे। लाजमी नहीं कि इनके पास वो पूरी दुनिया की हुकूमत हो, इल्मी तौर पर, अकली तौर पर, हर लिहाज से मुसलमान जो है कुफार पर गालिब होंगे। अब ये आप छोटा सा एक मामला देख लें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी बनाया, पीस टीवी चैनल लॉन्च किया, उस पर ईसाइयों को, हिंदुओं का, हर मजहब के लोगों को दावत दी, उन्होंने उसके साथ मुनाजरे किए, डिबेट्स हुई और उनका मसीहत का भी दीन झूठा साबित हुआ और मसीही भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं या हिंदू भी कर रहे हैं, जितने भी मज़हब के लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ये जो सैमी सैमसन टाइप के बदबख्त हैं या दूसरे मसीही हैं, अब इन्होंने गुस्सा तो निकालना है ना। ये क्या करते हैं, गाली गलोच करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं और इनकी हिम्मत तो यहां तक नहीं है। सैमी सैमसन को मैंने तकरीबन 700 से ज्यादा मेरी वीडियोज होगी और इसमें से मैं तकरीबन 500 वीडियोज में सैमी सैमसन को मैंने चैलेंज किया है कि मेरे सामने आके बैठ जा, आके बैठ, तू जितने भी दलाल देता है तू मेरे सामने दलाल दे, मैं तेरा दलाल रद्द करूंगा। अगर वहां बैठी पब्लिक कबूल ना करे तो मैं झूठा, उसमें मुसलमान भी होंगे, ईसाई भी होंगे। तो अब यह है कि सैमी सैमसन की भी हिम्मत नहीं है, सैमी सैमसन की, यानी कि ये बकवास कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो, वो अब सामने आते नहीं है। अब हम मजीद देखते हैं कि कुरान पाक में हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार कौन लोग हैं। इसको हम देखेंगे सूरह निसा यानी कि 4थी सूरह मुबारका में, और आयत है 171 और 72। आए किताब वालों, अपने दीन में ज्यादती ना करो। किनको कहा जा रहा है? हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकार जो अंजील शरीफ पर ईमान रखते थे, अंजील शरीफ, और अल्लाह पर ना कहो मगर सच। मसीह ईसा मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल ही है और उसका एक कलमा कि मरियम की तरफ भेजा गया और उसके यहां की एक रूह। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और 3 ना कहो, बाज रहो अपने भले को। अल्लाह तो एक ही खुदा है, पाकी है उसे इससे कि उसके कोई बच्चा हो, उसी का माल है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी कारसाज है। हरगिज मसीह अल्लाह का बंदा बनने से कुछ नफरत नहीं करता और ना मुकर्रब फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से नफरत और तकब्बर करे तो कोई दम जाता है कि वो इन सबको अपनी तरफ हाँकेगा। और मजीद हम देखेंगे सूरह माइदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका और आयत 116। और जब अल्लाह फरमाएगा, आए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को 2 खुदा बना लो अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती। अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा, तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही सब गैबों का खूब जानने वाला है।
अब हम मजीद इसी को देखेंगे। सूरह तौबा यानी कि 9वीं सूरह मुबारका और आयत इसकी 30। और यहूदी बोले उज़ैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी बोले मसीह अल्लाह का बेटा है। ये बातें वो अपने मुंह से बकते हैं, अगले काफरों की सी बात बनाते हैं। अल्लाह उन्हें मारे कहां ऊंधे जाते हैं। उन्होंने अपने पादरियों और जोगियों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया और मसीह बिन मरियम को, और उन्हें हुक्म ना था मगर ये कि एक अल्लाह को पूजे, इसके सिवा किसी की बंदगी ने उसे पाकी है उनके शर से। मजीद हम देखते हैं कि जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के जो हवारी थे, जो नसारा, जिन्होंने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा कहा, खुदा का बेटा कहा, उनके बारे में कुरान पाक का क्या हुक्म है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 सूरह अल माइदा और आयत 17 में। बेशक काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह बिन मरियम ही है। तुम फरमा दो फिर अल्लाह का कोई क्या कर सकता है अगर वो चाहे कि हलाक कर दे मसीह बिन मरियम और इसकी मां और तमाम जमीन वालों को। और अल्लाह ही के लिए सल्तनत आसमानों और जमीन और इनके दरमियान की जो चाहे पैदा करता है, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। मजीद हम देखते हैं कि जिन लोगों ने हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा बनाया, अल्लाह बनाया, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान क्या है, इसको हम देखेंगे सूरह 5 यानी कि सूरह अल माइदा आयत 75 में। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, और मसीह ने तो ये कहा था ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो। ये है इस्लाम का फलसफा कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम ने क्या कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने इस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक काफिर है वो जो कहते हैं कि अल्लाह 3 खुदाओं में का तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे इनको जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। तो क्यों नहीं रजू करते अल्लाह की तरफ और इससे बख्शिश मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यह तो था कुरान पाक में जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम को खुदा का बेटा या खुदा मानते थे, उनको भी कुरान पाक ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काफिर करार दे दिया। अब हम देखते हैं कि जो आज के चूड़े हैं, जो चूड़े हैं, ईसाई हैं, मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, इनका क्या अकीदा है, इसको हम देखेंगे लूका की अंजील जलील बाब 1 आयत 35 में। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा रूहल कुद्दस तुझ पर नाजुल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कौन? यसुलांती। यसुलांती क्या होगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। तो लिहाजा ये चूड़े भी क्या हुए? काफिर। अब मजीद देखते हैं कि यस्सु जो है वो अपने आप को क्या बनाता रहा, उसको हम देखेंगे यूहन्ना बाब 10 और आयत 29 और 30 में। मेरा बाप जिसने, यानी कि यस्सु भी अपने खुदा को अपना बाप कहता रहा, मेरा बाप जिसने मुझे वो दी है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। मैं और बाप एक है, यानी कि यस्सु ने कहा मैं और बाप एक है, यानी मैं और खुदा एक है, इक्वल है। और मजीद हम देखेंगे रोमियो बाब 9 आयत 5, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ जो सबके ऊपर अब तक खुदाए महमूद है। आमीन। यस्सु खुदा है, यस्सु खुदा है, यस्सु खुदा है। अब आपको क्लियर हो गया कि कुरान पाक ने जिन पैरोकारों को हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के पैरोकारों के बारे में फरमाया है वो कौन है? वो मुसलमान है जो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम की पैरवी करेंगे, हजरत ईसा मसीह बिन मरियम के फलसफे को, उनकी तालीम को, उनकी तबलीग को मानेंगे। और ये जो आज चूड़े हैं, चूड़े क्रिश्चियन, ईसाई, मसीही, ये वो नसारा नहीं है, क्योंकि ये नसारा 4 खुदाओं को मानते हैं। कौन कौन से खुदा को? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस और खुदा शैतान। आप कहते हैं कि खुदा, ये शैतान को खुदा नहीं मानते, ये तो ट्रिनिटी पर, तसलीस पर ही मान रखते हैं। तो भाई आप अपने
इन्हीं के मुंह से सुन लें। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है। और इस जहान का खुदा इब्लीस है। आपने सुन लिया कि इनके नजदीक जो है शैतान भी क्या है? खुदा है। तो ऐसे लोगों को कुरान पाक या अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसे क़यामत तक गुलबा दे सकता है? इनको, ईसाइयों को, मसीहों को गुलबा देना ऐसा ही है जैसे शैतान को गुलबा देना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन गंदगियों से, इन गलाजतों से पाक करके दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये सूर में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। कुत्ता कुत्ता है, यीशु भी कुत्ता है। फरमाने अल्लाह रब्बुल इज्जत है, बेशक जो ईमान लाए और अल्लाह के लिए घर बार छोड़े और अल्लाह की राह में अपने मालों और जानों से लड़े, अगर वो दीन में तुमसे मदद चाहे तो तुम पर मदद देना वाजिब है। सूरह अल-इन्फाल आयत 72। गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करता है, उसका खानदान, रिश्तेदार, बरादरी उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, उस पर तशद्दुद होता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है, वो तही दस्तो तही दामन हो जाता है। इस सूरत में उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि उसे पूरी तरह दीन और दुनिया में बहाल किया जाए। न्यू मुस्लिम का इकराम करना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। सही बुखारी 3344 हदीस मुबारका और सही मुस्लिम दूसरी जिल्द हदीस मुबारका 1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोजगार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमीन यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।